नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग. Let we see further in the carbohydrate, the fourth lecture in the series. Today we will discuss the examples of disaccharide and their properties. The first example in disaccharide is the sucrose. We all aware with what is sucrose. It is the household sugar, or we can say it is a kitchen sugar. Sucrose is the common sugar of commerce, means this is used in trade. हम शुगर जो है उसका इंटरनेशनल लेवल पर खरीदी करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं. सो इट इज़ अ शुगर ऑफ कॉमर्स एंड इट इज़ अ शुगर ऑफ किचन. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द हाउस होल्ड शुगर. उसको हम हाउस होल्ड शुगर बोलेंगे. It is widely distributed in all photosynthetic plants. Sucrose is produced in most of the plant during photosynthesis, and we can taste it as it is present in many fruits. The sweetness of the fruits may contributed by the presence of sucrose. What is the source of sucrose? From where we can get? So it is the chief constituent of the sugar cane. शुगर कैन, जिसको हम सैकरम ऑफिसिनेरम साइंटिफिक नेम है, गन्ना गुजराती में શેરડી, बीटा वल्गरिस एंड मैपल, एसर सैकरिना एंड पाइनएप्पल, अनानस सटाइवस एंड कैरोट, डुकासस carotta. So these are the normal raw material for the extraction of sugar. Sucrose occur in various forms in different plant parts. It is present in fruit, seeds, flower and root. Nectar of flower is particularly rich in sucrose. What is nectar? So in the last photograph you can see the portion of the flower, this one, ये जो आपको दिखाई दे, that is a flower, and flower is rich with honey like concentrated syrup which attract the insect, butterflies. Okay? So in order to take this honey like material, sugar syrup, the insects are attracted by the flowers for the purpose of pollination, जो परागनयन बोलते हैं ना, उसके लिए. तो मधु ग्रंथि, नेक्टर का क्या होगा? मधु ग्रंथि. So nectar is of flower is particularly rich in sucrose. It is raw material for honey. जो मधु बनता है, मध, तो वो मधु ग्रंथि के शुगर से बनता है. सुक्रोज इज प्रोबेबली वन ऑफ द फूड स्टफ यूज्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. सो ऑन द फर्स्ट फोटोग्राफ यू कैन से दिस इज द क्रिस्टल्स. सो वेरी फ्यू क्रिस्टल्स वी आर यूज इन किचन. वी आर यूजिंग द सिट्रिक एसिड क्रिस्टल्स ऑल्सो. Chemistry of sucrose. It is derived commercially from sugarcane and root beet. Refinement removes the yellow-brown pigment of the unrefined sugar to produce white crystalline form of the table sugar, while leaving syrup which does not crystallize. तो जो हम समर सीजन में गन्ने का रस पीते, सेर्डिनो रस, that is normally yellow in color. So this yellow color is the pigment. So this pigment is removed by the sugarcane industry by the process of charcoal, using the activated charcoal and addition of some chemicals, mainly sulfate. So excess of sulfate
makes the sugar very white crystalline, but on other side it is a harmful. So this yellow pigmented removed sugar is converting in brown and black color. It is not used. It turns like a dark honey like color syrup. So this yellow turns to white in color, and this white color syrup that you see in the photograph is used for the preparation of sugar. This sugar syrup is known as the molasses. Molasses in Gujarati or Hindi you can say chasni, sugar syrup. So concentrate sugar syrup is known as the molasses. And molasses, that word will come in future repeatedly. So be careful. Remember this word molasses. Molasses means sugar rich concentrate sugar solution or syrup. So it is commercial product and least refined form of the sucrose. So when the water is removed, then the concentrated syrup is produced. It is a molasses. In plant, sucrose is formed by elimination of water molecule, and that forms the glycosidic bond between glucose and fructose. So on the screen you are watching the glucose plus fructose. The first carbon of glucose joined with second carbon of this is the first carbon of glucose, and this one is the second carbon of the fructose. Glucose is aldehyde sugar on the first carbon, and in fructose it is a ketone sugar on second one. So the bond that is produced, this bond is between two functional group, aldehyde and ketone. That's why both group are not free. The OH group of both group are not free to react. That's why the sucrose is known as the non-reducing sugar. Sucrose is known as the non-reducing sugar. The linkage between two disaccharide moiety of sucrose is a glycosidic bond between the C1 and C2 of fructose. Properties: sucrose, we know it is a white crystalline solid. It is soluble in water. The melting temperature is 180 degree. When heated above its melting point, its brown substance known as the caramel. So we have used the eat the ice cream, butterscotch. So in the butterscotch we find there is some crunchy material. This crunchy material is nothing else but the caramel. When you burn the sugar directly on the pan, आप तवे पे सीधे शक्कर है उसको हॉट कर दीजिए. सो इट टर्न्स टू ब्राउन इन कलर. आप कभी स्टील के बर्तन में भी हीट करेंगे शुगर सॉल्यूशन तो उसके वॉल पे ब्राउन कलर बनेगा. सो दैट ब्राउन कलर इज ऑफ कैरेमल. सो कैरेमल क्या है? दैट इज अ बर्न्ट शुगर. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चार्ज सुक्रोज, द प्रोडक्ट बीइंग ऑलमोस्ट प्योर कार्बन. अगर आप शुगर को प्योर कंसनट्रेटेड H2SO4 में डाल के हीट करेंगे 600 डिग्री पे, 400 डिग्री पे, तो बाद में जो बचेगा ब्लैक कलर का पाउडर, दैट इज ओनली कार्बन. सो यू कैन प्रोड्यूस प्योर कार्बन. द डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैज़ द स्पेसिफिक रोटेशन 66.7 डिग्री. तो जो भी शुगर सॉल्यूशन है वो शुगर सॉल्यूशन में जब हम एक लाइट पास करते हैं तो वो लाइट एक डायरेक्शन में डाइवर्ट होगी. तो वो जो डाइवर्जन होगा लाइट का, जिसको हम वक्रीभवन बोलते हैं, वो डाइवर्जन होगा, वो एक एंगल बनेगा. सो वो एंगल प्लस साइड भी बन सकता है और माइनस साइड भी बन सकता है. तो उसको नाम दिया जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी.
तो शुगर सॉल्यूशन जब हम देंगे और लाइट उसमें से पास करेंगे, सो दैट इज अ 66.7 डिग्री एंड यू हैव द प्रैक्टिकल इन केमिस्ट्री। आपको स्पेसिफिक रोटेशन चेक करना है सॉल्यूशन का, तो उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा। इट इज़ बाय फार एज द स्वीटेस्ट इन 3 मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये 3 शुगर में सबसे ज़्यादा सुक्रोज है, स्वीट है। लैक्टोज जो आप सीधा दूध पिएंगे, मिल्क पिएंगे डायरेक्टली, तो वो उतना स्वीट नहीं होता, वो हल्का सा स्वीटनेस होता है, तो लैक्टोज स्वीट होता है। माल्टोज सिरप होती है, वो आपको जो बच्चों का खाना आता है, अमूल्या, सेरेलेक, माल्टो, वो होता है, वो स्वीट होता है पर हल्का सा। बट कंपेयर टू दैट वन, सुक्रोज इज वेरी गुड इन स्वीट एंड टेस्ट। इट इज ऑल्सो स्वीटर देन द ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज पाउडर खाना है और साथ में शक्कर खानी है, आपको ग्लूकोज से भी ज़्यादा स्वादिष्ट जो स्वीटनेस है वो लैक्टोज से, सुक्रोज से आएगा। इट क्रिस्टलाइज इन कलरलेस क्रिस्टल्स, वो हमको पता है। सुक्रोज डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। अब देखो, म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है? अल्फा और बीटा फॉर्म में होना। तो म्यूटा रोटेशन में क्या होगा? यहां पर शुगर अल्फा या बीटा फॉर्म में नहीं होगा। द शुगर कैन नॉट मूव इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म बिकॉज इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग। क्योंकि यहां पे जो कार्बन था, यहां पर जो कार्बन था वो OH ऊपर भी होता है और OH नीचे भी कर सकता है। तो ऊपर और नीचे OH जो करना है उसको वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो OH किस में बाउंड है? बॉन्ड फॉर्मेशन में। वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 नंबर और 4 नंबर जुड़ते तो यहाँ पे 2 नंबर फ्री हो जाता, तो वो OH ऊपर रहता तो बीटा हो जाता और OH नीचे रहता है तो अल्फा हो जाता। इसीलिए सुक्रोज में म्यूटा रोटेशन नहीं होगा, बिकॉज म्यूटा रोटेशन करने वाला जो सेकंड नंबर का कार्बन है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बाउंड है। सो सुक्रोज डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर। तो वही सेम बात, उसके पास कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप दोनों में से 2 ही शुगर में से किसी एक का भी फ्री नहीं है। बोथ आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, so that's why sucrose is a non-reducing sugar. It does not forms the oxazone and enzymes. ओसाजोन क्या है? तो फिनाइल हाइड्रोजन से एक रिएक्शन करने के बाद वो क्रिस्टल्स बनते हैं, जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। वैसे मोनोऑक्साइम के साथ केमिकल रिएक्शन होगा, पर वो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर म्यूटा रोटेशन नहीं कर सकता, ओसाजोन नहीं बना सकते, ऑक्साइम्स नहीं बना सकते, किसी शुगर का रिडक्शन, किसी मेटल का रिडक्शन नहीं कर सकते। ऑन हाइड्रोलिसिस शुगर इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, बराबर। तो अगर हम उसको तोड़ दिए तो 2 शुगर आपको मिलेगी, एक ग्लूकोज और एक दूसरी फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 शुगर्स हो गई। तो सुक्रोज को जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो सिरप बनेगा उसको इनवर्ट शुगर्स बोले जाएगा। इन्वर्ट किया गया, तोड़े हुए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सो वेन एवर द इंडस्ट्रियलिस्ट परचेज द शुगर, दे चेक द प्रेजेंस ऑफ इनवर्ट शुगर। जितना इनवर्ट शुगर ज़्यादा है उसका मतलब वो शुगर केन बहुत पुरानी है, गन्ना बहुत पुराना है। सो इनवर्ट शुगर इज यूज्ड इन कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, जहाँ से आप चॉकलेट्स बनती है, स्वीट पिपरमिंट्स बनते हैं, तो उसके लिए जो सिरप चाहिए वो सिरप सुक्रोज में से इनवर्ट शुगर करके बनाया जाता है। दिस मिक्सचर रेडिली रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड अदर अलाइक रिएजेंट। तो रिड्यूसिंग शुगर के जो भी टेस्ट है वो सुक्रोज नेगेटिव देगा, पर अगर सुक्रोज को तोड़ दिया जाए तो उसमें से मोनोसैकेराइड्स बनेंगे। बोथ विल बी मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एंड एज वी नो द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज
और एनी मोनोसेकेराइड इज रिड्यूसिंग शुगर, तो वो रिड्यूसिंग शुगर के सभी टेस्ट देंगे. तो ऑल मोनोसेकेराइड्स गिव रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट पॉजिटिव, बट सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग, सो इट कैन नॉट गिव द रिड्यूसिंग टेस्ट पॉजिटिव. तो सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं देगा, और उसी के तोड़े हुए दो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अगर उसको तोड़ दिया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है, तो दोनों के पास अपना कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहेगा और वो टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के देंगे. तो बेनेडिक्ट टेस्ट, बायल्स टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, ओके, फेलिंग्स टेस्ट, सब पॉजिटिव देंगे. और यू हैव अ प्रैक्टिकल, आपको इसका प्रैक्टिकल भी है. Now the second example of disaccharide, it is a lactose. Lactose is found in milk. Lactose is solely of animal origin and it is found in the milk of mammals. ये अकेली शुगर है जो ह्यूमन बॉडी बनाता है और एनिमल बॉडी में बनता है. जनरली एनिमल्स सुक्रोज कोई भी शुगर बनाते नहीं है, दे यूटिलाइज और डिग्रेड द शुगर, बट अपने आप में कोई शुगर बनती है तो यही एक लैक्टोज है. इट इज अ यूनिक लैक्टोज, यूनिक शुगर. इट इज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ मैमल्स, जो स्तनधारी प्राणी है, जो अपने बच्चों को दूध देते हैं, काउज, बफेलोज, कैमल, ह्यूमंस. तो जो दूध देते हैं, दूध के अंदर वो शुगर रहती है. ह्यूमन मिल्क कंटेन 6 to 8% lactose as compared to cow's milk 4 to 8%. हम में से ज़्यादातर लोग गाय का दूध नहीं पीते, और जो लोग पीते हैं उनको पता है गाय का दूध उतना मीठा नहीं होता जितना बफेलो का होता है. पर यहाँ पे कंपैरिजन है मदर मिल्क के साथ. तो मदर मिल्क हैव अ मोर लैक्टोज. इन द कंपैरिजन ऑफ मिल्क table you can see the lactose portion is 6.8% in mother milk, whereas 4.8% is in a cow's milk. So comparison is there. Mother's milk is 1.5 times sweeter than cow's milk. It is an unique product of mammary glands. तो जो स्तन होते हैं, अंचल होते हैं, उसके अंदर एक टिश्यूज़ होती है और वो टिश्यूज़ में मिल्क बनता है, जिसको हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स. सो इट इज़ अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड. इट इज़ नॉट फाउंड इन अदर पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी. तो मिल्क जो होता है वो बॉडी में उसी जो मेमरी ग्लैंड है उसी में से ही बनता है, और उसी को ही फैच करके जो मिल्क मैन है वो काउज और बफेलोज में से मिल्क कलेक्ट करता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट में बी फाउंड इन द यूरिन. तो हमारी बॉडी में लैक्टोज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो थ्रू ब्लड किडनी के द्वारा यूरिन में भी हो सकता है प्रेजेंस लैक्टोज. लैक्टोज इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ वे. WHEY वे क्या है? तो ये जो डेयरी इंडस्ट्रीज है, दूध सागर डेयरी है बड़ी बड़ी, तो जो लार्ज डेयरी है उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसा कि चीज़, छाछ. तो उसमें से जब पानी निकाल लेते हैं तो जो सॉलिड्स बचता है और उसमें से पनीर बनाते हैं, तो उसको क्या करते, प्रेस करते हैं. तो प्रेस करने से जो लिक्विड निकलता है, जैसे आप घर पे घी बनाते हो, तो घर के घी बनाने से पहले आप क्या करते हो, जो मक्खन होता है वो मक्खन को पानी से आप अलग बन करते हो. तो उसमें से जो वेस्ट निकलेगा, वाइट कलर छाछ जैसा पानी, उसको बोलेंगे वे. वे इज़ व्हाट? वे इज़ द प्रोडक्ट. ओके, विच प्रोडक्ट? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑफ चीज़ मैन्युफैक्चर. तो जो चीज़ बनाते हैं उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है वो वे है, और वे इज़ वेरी रिच इन लैक्टोज. तो जैसे हम अपनी छाछ बनाते हैं वो भी एक वे ही कंसिडर किया जा सकता है. सो दैट इज़ रिच इन लैक्टोज.
तो वो वे जो है उसमें से उसको ड्राई पाउडर बना के लैक्टोज प्यूरिफाई किया जाएगा। वे इज ऑब्टेन बाय एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चीज मैन्युफैक्चरिंग। आप अपने घर पे कभी श्रीखंड बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, दही को एक कपड़े में बांध के उसको पूरा निचोड़ेंगे, तो उसमें से जो पानी निकलता है दैट इज अ वे। So lactose may be formed by elimination of molecule of water from hydroacidic OH group of beta-D galactose and alcoholic OH group of the fourth carbon of glucose। तो गैलेक्टोज में 1 नंबर और ग्लूकोज का 4 नंबर, वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। 1 नंबर पहली शुगर गैलेक्टोज है और दूसरी शुगर ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे CHO फ्री है, ये CHO ग्रुप फ्री है, तो ये शुगर कैसी हो गई, रिड्यूसिंग शुगर। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाया है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन पैटर्न है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है एन पैटर्न मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करना है तो उसमें आपको एक H2O ऐड करना है, तो H2O ऐड करने पर 2 मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज। लैक्टोज itself cannot be absorbed from intestine into bloodstream unless it is first hydrolyzed into monosaccharide unit। तो जब भी हम मिल्क पीते हैं तो हमारे जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उसके अंदर उसका डिग्रेडेशन इम्पॉर्टेंट है। और डिग्रेडेशन के लिए कौन सा एंजाइम है, लैक्टेज। तो लैक्टेज एंजाइम डिग्रेड दिस 2 sugars from disaccharide to monosaccharide। The enzyme lactase is actively secreted by the intestinal mucosal cell in suckling infants, and therefore lactose in form of the milk suckled by them, and it is hydrolyzed to the components monosaccharide, thus affecting absorption by the intestinal tract। जो दूध पीते बच्चे, suckling इन्फंट्स मतलब छोटे बच्चे, नवजात शिशु, और सकलिंग इन्फंट्स तो दूध पीते बच्चे। सो दैट सकलिंग इन्फंट्स हैव द कैपेसिटी टू डाइजेस्ट दिस मिल्क यूजिंग द लैक्टेज एंजाइम ऑफ देयर इंटेस्टाइन। Properties lactose. Lactose is a white crystalline solid, melting point is 203 degree with decomposition and it is also dextrorotatory। जब आप पानी में उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और लाइट पास करेंगे तो वो लाइट प्लस साइड घूमेगी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो उसके 2 फॉर्म्स होंगे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा फॉर्म हैव अ स्पेसिफिक रोटेशन। अल्फा +90 पे मूव करेगी लाइट और बीटा में +35 डिग्री करेगी। अगर अल्फा और बीटा दोनों को हम मिक्सचर डाल दें तो अल्फा और बीटा दोनों ही मिक्सचर है और दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई करते हैं। उसके लिए उसमें ना तो 90 रहेगा ना 35 रहेगा, उसके बीच का रहेगा क्या क्या 52.5। So 52.5 rotation is the rotation of racemic mixture। racemic mixture का मतलब अल्फा और बीटा दोनों का इक्वल मिक्सचर। सो वन विल नलीफाई द इफेक्ट ऑफ सेकंड। तो 90 पर वो नहीं जा सकता क्योंकि 35 उसको वापस बुला रहा है। सो इन शॉर्ट द रोटेशन इज 52, not a 90 or not a 35। So such mixture is known as the racemic mixture। racemic mixture। Sometime alpha isomer crystalline in ice cream making the product seem sandy in texture। तो ये लैक्टोज है, वो सैंडी जैसे कुछ कण हो आइसक्रीम में, वो सैंडी टेक्सचर देने के लिए यूज होते हैं। बीटा आइसोमर इज यूज इन डाइट फॉर इन्फेंट्स।
जो छोटे बच्चे 6 महीने के बाद या 3 महीने 2 महीने के बाद खा नहीं पा सकते, या उनकी मदर नहीं है, या मदर में से फीडिंग नहीं आ रहा, तो डॉक्टर लिखते हैं कि पाउडर दे दो उसको। तो जो पाउडर आता है उस पर आपने लिखा हुआ होगा लैक्टोजेन। तो अमूल्या, सेरेलैक, बहुत सी सारी कंपनी है, अपने अपने पाउडर्स जो है मार्केट में बिकती है, तो उसमें लैक्टोजन लिखा है। उसका मतलब क्या है? पाउडर इज रिच विद द लैक्टोज। सो दिस इज यूज फॉर द डाइट फॉर इन्फेंट्स। Since the lactose has free carbonyl group of at the atom 1 glucose, it is a reducing sugar. तो वो तो मैंने अभी बता दिया। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्री है, ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में जा रहा है, और फर्स्ट कार्बन जिसपे CHO बॉन्ड है वो रिड्यूसिंग होगा। तो लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट सब पॉजिटिव देगा। ये एंजाइम्स भी बनाएगा और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन भी बनाएगा। सो लैक्टोज इज अ फ्री कार्बोनिल ग्रुप एट 1 एटम, सो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है, बीटा फॉर्म है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स है। तो जो प्लेन है समतल, उसके ऊपर भी जा सकता है OH और नीचे भी आ सकता है। तो ऊपर रहेगा तो बीटा और नीचे रहेगा तो अल्फा। तो इसका प्लस 91 रोटेशन है, इसका प्लस 31 32 समथिंग है, और अगर दोनों ही है तो 52 अराउंड होगा। सो दिस इज द म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन इज मीन्स conversion of alpha to beta and beta to alpha form in a ring form. There is one problem with the lactose. कुछ लोगों को जो दूध होता है वो हजम नहीं होता, पीते ही उनको वॉमिट हो जाएगी। उसका कारण क्या है? So this situation is known as the lactose intolerance. Milk is the universe food for newborn mammals and one of the most complete human food. दूध को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट फूड, नियर टू कंप्लीट फूड। उसमें विटामिन सी के अलावा सारे विटामिन है, मिनरल्स है, एंड इट इज़ द मेन फूड फॉर द न्यूबॉर्न। किसी भी एनिमल का जो बच्चा है वो दूध पी के ही बड़ा होगा। सो कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क। तो बहुत लोगों को दूध नहीं हजम होता। क्यों? दे आर डेफिशिएंट इन इंटेस्टाइनल लैक्टेज, द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज द मिल्क शुगर। उनके इंटेस्टाइन में लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता, and the enzyme that hydrolyze the milk sugar lactose, such individual may therefore show the lactose intolerance. तो वो लोग जैसे ही मिल्क पीते, दूध पीते, तो उनके जो इंटेस्टाइनल है उसमें कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है, वो वॉमिटिंग हो जाते हैं, नोजिया हो जाता है, तो डायरिया हो जाता है। पेट में जो उसमें उनको दुखने लगेगा। द सिम्टम्स of lactose intolerance characterized by abdominal bloating. Abdominal bloating यानी जो पेट का हिस्सा है उसमें कुछ गैस वगैरह हो जाना, उसमें गुड़ गुड़ होना आपको लगता है, जैसे फील होता है। सो दैट इज द एब्डोमिनल ब्लोटिंग। क्रैम्प होगा, जिसको जैसे आप फील करेंगे आपको अचानक सा बहुत सा दर्द होने लगेगा इंटेस्टाइन में, दैट इज क्रैम्पिंग। फ्लूटूसन भी वही सिम्टम्स है। कॉलिक पेन, वही पेट के नीचे हिस्से में आपको बहुत दुखना, जो फोटोग्राफ में दिखाई देता है वैसे। एबनॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लो, बराबर, आपको पेट में से तुरंत आपको डायरिया हो जाएगा। नोजिया, फीलिंग होगी वॉमिटिंग की, नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, एंड वाटरी डायरिया, और आपको वॉमिट भी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में लैक्टोज का डिग्रेडेशन लैक्टेज एंजाइम से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में होना चाहिए था, तो लैक्टेज नहीं है, तो लैक्टोज जो होगा वो पानी के साथ रहेगा और वो डायरिया कर सकता है।
तो ये सारे उसके सिम्टम्स है, गैस होना, क्रैम्पिंग, बराबर, गर्गलिंग साउंड, जैसे मैंने बताया ना पेट में गुड़गुड़ होना, तो दैट इज गर्गलिंग साउंड इन द लूज स्टूल। तो वाटर बहुत रहेगा, डायरिया जैसे फीलिंग करेंगे, और ब्लोटिंग, आपके पेट में कुछ हिल रहा है, घूम रहा है, वैसे आपको फीलिंग हो जाएगी। सो दिस इज द लैक्टोज इंटॉलरेंस। थर्ड शुगर, माल्टोज। माल्टोज डज नॉट अकर अबाउंडेंटली इन द नेचर। जैसे हमको लैक्टोज बहुत सारा मिल जाएगा, और सुक्रोज बहुत सारा मिलेगा, आपको माल्टोज नहीं मिलेगा। माल्टोज जनरली कुछ ही टाइम के लिए बनता है। जब आप फोटो में आप देख रहे हो कि जैसे स्टार्ची ग्रेन है, उसको आप ज़मीन में सीडलिंग के लिए डालेंगे, तो उसके जर्मिनेशन के टाइम पे जो स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, उसका डिग्रेडेशन होगा, और उसमें से दो दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रिलीज होते हैं। तो जो डाइसैकेराइड है वो माल्टोज होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और जो बॉन्ड है वो भी कौन सा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द सिंपलेस्ट डाइसैकेराइड जिसको मैं बोलूँगा सिंपलेस्ट डाइसैकेराइड, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और मोस्ट कॉमन बॉन्ड अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो माल्टोज नेचुरली नहीं होता, इट्स अकरेंस हैज बीन ऑकेजनली रिपोर्टेड, बहुत कम ही बार उसको दिखाई देते। इट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च। तो नेचुरली जब स्टार्च का डिग्रेडेशन होगा सीड्स के अंदर जर्मिनेशन के दरमियान, तब होगा। और इफ़ यू जर्मिनेट द सीड्स ईयर ऑन, आपको कुछ जर्मिनेशन करना है, जवारा खिलाना है घर पे, तभी हो जाएगा। और जैसे इंडस्ट्री है विच मेक द माल्ट सिरप, तो आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हो माल्ट सिरप। सो माल्ट सिरप यूज इन द कॉन्फेक्शनरी पर्पज एंड फार्मास्यूटिकल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द सिरप सॉल्यूशन। आजकल के जो बच्चे की जो दवाई आती है, किसी भी दवाई, तो वो स्वीट आती है शुगर सिरप के साथ। तो वो ताव की दवाई हो या सर्दी की हो या कुछ भी हो, तो जनरली वो जो बॉटल होती है स्वीट ही होती है, तो उसमें अंदर ये माल्ट सिरप यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च। तो स्टार्च से डिग्रेड करके उसमें डायरेक्टली जो सिरप बनाई जाएगी, माल्ट सिरप बनेगी। ओके, स्पोर्यूलेटिंग सीरियल्स ग्रेन, जैसे फोटोग्राफ में बताया वो जर्मिनेट हो रहे सीरियल ग्रेन्स आर रिच इन अमाइलेज एंजाइम। और एमाइलेज एंजाइम का क्या काम है, वो स्टार्च को डिग्रेड करेंगे और स्टार्च के छोटे छोटे चेन्स बनेंगे, दे आर नोन एज द डेक्स्ट्रिन। और डेक्स्ट्रिन में से दो दो कार्बन की, दो दो शुगर की, दो दो ग्लूकोज का पैर अलग होगा, और हर एक पैर को हम क्या बोलेंगे, माल्टोस। माल्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द स्पोर्यूलेटिंग बार्ली, इट इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ द माल्टोस, बराबर। तो जब हम घर पे जवारा जो बोलते हैं उसको ग्रो करेंगे और उसमें से जो लिक्विड निकलेगा वो माल्टोज हो सकता है। माल्टोज इज द सिंपलेस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे सिंपल डाइसैकेराइड है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द माल्ट दैट कंटेन द एंजाइम डायास्टेज। डायास्टेज हर एक के मुंह में है, आपकी जो सलाइवा है वो सलाइवा में डायास्टेज है। आपको क्या करना है, रोटी को बहुत टाइम के लिए चबाना है, तो वो स्वीट हो जाएगी। स्वीटनेस क्यों आएगी, तो स्टार्च है उसका डिग्रेडेशन होगा। जो सलाइवा में अमाइलेज है और माल्टेज है और डायास्टेज है, उससे वो स्वीट बनेगी, डिग्रेडेशन होगा स्टार्च का। तो आपका जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम है, वो एंजाइम का नाम क्या है, डायास्टेज। Maltose may be considered as originating by the splitting out of molecule of water from the glycosidic OH group of alpha D glucose and alcoholic group of the glucose on the carbon 4 of the D glucose, बराबर। तो ये जितना लंबा नाम है इतना यहाँ पे फिगर में भी है कि एक शुगर
एक नंबर का जो शुगर है उसका एक कार्बन, दूसरे नंबर की जो ग्लूकोज है उसका 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विद द रिलीज ऑफ H2O। तो एक OH और दूसरा OH, उसमें से 2 H और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा। So this is the glycosidic bond. Maltose is easily hydrolyzed into 2 identical units of the glucose. तो माल्टोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो आप एसिड डाल के, अल्कालाइन डाल के और माल्टेज एंजाइम, तीनों तरह से आप उसको डिग्रेड कर सकते हैं। डाइल्यूट एसिड डालने पर भी ग्लूकोज अलग हो जाएंगे और एंजाइम से भी अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए जो एंजाइम उसका नाम क्या है? माल्टेज। इट इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन। हाइड्रोलिसिस में बी बॉट अबाउट बाय द एंजाइम डायास्टेज। तो डायास्टेज वो सलाइवा का अमाइलेज एंजाइम है, जिसको इनिशियली डायास्टेज नाम के डाइजेशन के लिए यूज होता था सलाइवा में, तो उसका नाम रखा गया था डायास्टेज एंड इट इज फाउंड इन द स्पोरियोलिटिक बार्ली। तो जो जर्मिनेटिंग ग्रेन्स है उसके अंदर मिलेगा आपको। Maltose, it is a white crystalline powder, melting temperature 160 to 165 degree. It is soluble in water, okay, and dextrorotatory. Because they have the free group, maltose is also reducing sugar. अब फिर से हम देख ले यहाँ पे कहाँ है reducing sugar। तो ये जो कार्बन है एक नंबर, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? CHO ग्रुप। तो ये अल्फा फॉर्म है, ऊपर जाएगा तो बीटा हो जाएगा। तो ये म्यूटा रोटेशन भी करेगा। देखो ये म्यूटा रोटेशन का स्केलेटन फॉर्म में आपको दिखाई देगा। सी हियर म्यूटा रोटेशन। अल्फा फॉर्म 36% रहता है और बीटा फॉर्म 64% रहेगा। जो अल्फा फॉर्म है उसका डेक्स्ट्रो रोटेशन कितना है? +112 डिग्री। और बीटा फॉर्म है लीवो रोटेटरी, उसका कितना है? +18.7। और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 52.7। तो ये रहेगा उसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्मेशन। फिर आपको मैंने बताया था ओसाजोन क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो रिएक्शन ओसाजोन, सो शुगर्स को जब एक केमिकल के साथ मिलाया जाएगा, जो केमिकल है उसका नाम है फिनाइल हाइड्राजिन। सो फिनाइल हाइड्राजिन उसके फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे अटैच होंगे और उसमें से ये क्रिस्टल्स बनेंगे। तो ये जो क्रिस्टल्स आप देख रहे हो, दिस क्रिस्टल्स you have to see under the microscope. In the microscope, the pattern of crystals will tell you which sugar is there. So this test, the formation of crystal using phenyl hydrazine, is given positive only by the reducing sugar, and the test is known as the Osazon. So these are known as the Osazon crystals, which we have to see in the low power or high power microscope. This is the dextrine maltose. This is a food material for the baby. It is a baby food. जो 6 महीने का है, 4 महीने का है, 7 महीने का है, 9 महीने का है, उस बच्चे को शुरुआत करनी है खाने की, तो जो पाउडर बनेगा दैट हैविंग दी माल्टोस. तो माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर भी है, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट देगा, ओसाजोन देगा, ऑक्साइम्स देगा और म्यूटा रोटेशन भी करेगा. डाइसैकेराइड है, उसको तोड़ने पर आपको 2 शुगर मिलेगी, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होगी. फोर्थ डाइसैकेराइड हम देख लेंगे सेलोबायोस. सेलोबायोस बिल्कुल माल्टोज के जैसा ही है. आपको फिगर कंपेयर करके दिखाना है. डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज यू एंड एन. माल्टोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा रहेगा और सेलोबायोस में बीटा रहेगा.
माल्टोज की अगर चेन बनती जाए ऐसे तो वो स्टार्च बनेगा, और यहाँ पे ग्लूकोज की चेन बनेगी और बीटा बॉन्ड से बनेगी तो वो सेल्यूलोज बनेगा। तो सेल्यूलोज और स्टार्च, उसमें बेसिक डिफरेंस एक है जो है अल्फा और बीटा फॉर्म। स्टार्च का डिग्रेडेशन होने पर आपको माल्टोज मिलेगा, और सेल्यूलोज का डिग्रेडेशन होने पर आपको मिलेगा सेलोबायोस। सो दैट्स व्हाई द नेम इज सेलोबायोस, सेल्यूलोज के दो मॉलिक्यूल्स वाला सुगर। सो दिस डाइसैकेराइड, दिस डाइसैकेराइड इज प्रोबेबली प्रेजेंट इन वन ट्रेस इन नेचर, बहुत कम मिलेगा आपको। इट इज ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लॉस्ट्रीडिया है, सेवरल फंजाइस है, दे हैव द कैपेसिटी टू रिलीज द एंजाइम सेल्यूलेज। तो सेल्यूलेज एंजाइम जो डिग्रेड करेगा और उस वक्त जो दो शुगर मॉलिक्यूल अलग हो गए वो होगा सेलोबायोस। So cellulose is identical with maltose except that is former has a beta 1 for glycosidic form in contrast to alpha 1 for glycosidic 1 in better। तो ये आपको एक डिफरेंस मिलेगा सेलोबायोस और माल्टोज में। Cellobiose is a white crystalline solid, melting point is 225 degree, it is a water soluble, it is a dextro rotatory, it shows a reducing sugar capacity। तो यहाँ पे मैंने आपको फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट सब दिखाए हैं। तो फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होगा, फेलिंग सॉल्यूशन है या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, उसमें रहेगा एक कॉपर सल्फेट एंड मेटल आयन इज देयर। तो दिस मेटल आयन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर का अल्डिहाइड ग्रुप है। सो दिस अल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस द कॉपर, वो कॉपर को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस्ड कॉपर है वो केमिकल रिएक्ट होके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके रेड कलर के पीपीटी बनाएंगे क्यूप्रस ऑक्साइड के। सो Cu2O जो है वो दिखाएगा कि शुगर रिड्यूसिंग और नहीं रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूटेड बाय द अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ द शुगर, ओके, बट शुगर इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, खुद शुगर का ऑक्सीडेशन होगा और मेटल आयन का रिडक्शन होगा। तो ये फेलिंग टेस्ट है। सिमिलरली बेनेडिक्ट टेस्ट में भी ऐसा होगा। फेलिंग में क्या होता है, दो सॉल्यूशन ए और बी को मिलाए जाएंगे, और बेनेडिक्ट में पहले से ही मिले होते हैं, कॉपर सल्फेट और Na2CO3। तो ये एक डिफरेंस है। तो ये डाइसैकेराइड्स सुक्रोज के सिवा और ट्रेलूज के सिवा फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के पॉजिटिव आएंगे, और ऑक्साइम भी पॉजिटिव आएगा, ओसाजोन भी पॉजिटिव आएगा। ऑल डाइसैकेराइड विथ फ्री एसिटाइल ग्रुप रिड्यूस द शुगर and reduce the cupric to copper, cupric copper to cuprous oxide, जो दिखा है ना मैं Cu2O, प्रेसिपिटेट होंगे रेड कलर के, ओके। तो फेलिंग टेस्ट एंड सिल्वर आयन टू मेटालिक सिल्वर इन द सिल्वर मिरर रिएक्शन, तो इसका यूज वहां पर भी होता है जिससे आईना बनता है। They are not powerful reducing sugar as compared to monosaccharides, galactose and fructose। तो यहाँ पे भी एक बात हम देख ले कि all monosaccharides are reducing sugar and all disaccharides are not reducing sugar। ऐसा नहीं है, कुछ रिड्यूसिंग शुगर है, कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो जो डाइसैकेराइड्स है उसमें से जो रिड्यूसिंग शुगर है वो उतने पावरफुल नहीं होते जितने मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि मोनोसैकेराइड का हर एक के पास एक कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप फ्री है ही है, बट डाइसैकेराइड में दो के बीच में एक ही ग्रुप फ्री है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में कंपलसरी है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में किसी एक शुगर का कीटोन और अल्डिहाइड होना कंपलसरी है, तो दोनों में से एक शुगर का फ्री हो सकता है और दूसरा नहीं होगा। इसीलिए मोनोसैकेराइड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन द डाइसैकेराइड्स। लास्ट में हम
कुछ शुगर जान लेते हैं। आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टोज में क्या है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, माल्टोज के जैसा ही है, पर जैसे हम एमाइलोज और स्टार्च को तोड़ते हुए यहाँ पे ब्रांच आती है, तो ब्रांच में जो लीनियर स्टार्च है उसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड ऊपर के फर्स्ट कार्बन से नीचे वाले के 6 कार्बन के साथ बनेगा। तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा फर्स्ट कार्बन और ये 6 कार्बन। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, ये गलत लिखा है, अल्फा, ये सॉरी ये सही है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो दो ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइंट हो गए तो उसको हम बोलेंगे आइसोमाल्टोज। उसको क्या बोलेंगे, आइसोमाल्टोज। दो ग्लूकोज अल्फा 1,4 है तो माल्टोज, अल्फा 1,6 है तो आइसोमाल्टोज, और बीटा बॉन्ड है तो सेलोबायोस। और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर देख लेते हैं, ट्रेहेलोज। ट्रेहेलोज में क्या है दिक्कत, वाइट इज नॉन रिड्यूसिंग, तो यहाँ एक ग्लूकोज का पहला नंबर और दूसरे ग्लूकोज का पहला नंबर दोनों ही फर्स्ट कार्बन, दोनों ही एल्डिहाइड ग्रुप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों के ग्लूकोज के बीच में कोई भी शुगर फ्री नहीं है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में दोनों ही एल्डिहाइड ग्रुप इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के दो एग्जाम्पल आपको बराबर याद करना है। यू हैव टू रिमेंबर 2 एग्जाम्पल्स, वन इज सुक्रोज एंड सेकंड वन इज ट्रेहेलोज। सो ट्रेहेलोज कहाँ पे पाया जाता है, इट इज ऑब्जर्व इन द सर्कुलेटिंग फ्लूइड हीमोलिम्फ्स ऑफ इंसेक्ट। जो छोटे इंसेक्ट होते हैं जिसको आप मार देते हो तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता। जो आपको मॉस्किटो बाइट करता है, अगर वो फ्रेश है, उसने किसी को भी बाइट नहीं किया, उसको मारने पर आपको उसमें से ब्लड नहीं निकलेगा। तो उसका खुद का जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता, वो वाइट सॉल्यूशन होता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन होता है, तो उसके बॉडी में जो रिजर्व फूड मटेरियल हो सकता है वो ट्रेहेलोज है। ट्रेहेलोज इज अ एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड इन द इंसेक्ट. It is found in the yeast and other fungi. 2 anomeric carbon of 2 sugar alpha D glucose moiety connect each other. एनोमरिक कार्बन का मतलब अल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बन, तो दोनों ही के फर्स्ट कार्बन ग्रुप में उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। इट रिसेंबल द सुक्रोज इन बीइंग अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट हैज़ नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। तो दोनों के पास में कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसीलिए ये शुगर क्या बन जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनता है तो वो ओसाजोन नहीं देगा, रिड्यूसिंग शुगर, बेनिडिक, बारफोर्ड टेस्ट और वो फ्रेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, और वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन भी नहीं देगा। ओके, उसको रिड्यूसिंग करना है तो उसको आपको तोड़ना होगा, और तोड़ने के लिए आपके पास क्या है हो सकता है, हाइड्रोलिसिस करने के लिए एसिड आप डाल सकते हो या एंजाइम डाल, तो जो एंजाइम है उसको डिग्रेड करेगा बॉन्ड को, और वो ट्रेहेलोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर हाउ मैनी डाइसैकेराइड कंसिस्ट बोथ ग्लूकोज यूनिट। दो ग्लूकोज हो, वैसे कितने शुगर है, एक माल्टोज, सेलोबायोस, आइसोमाल्टोज और ट्रेहेलोज। 4 डाइसैकेराइड है जिसमें 2 ही शुगर ग्लूकोज और ग्लूकोज है, पर उसके बीच में बॉन्ड जो है वो अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 और बीटा बॉन्ड और अल्फा 1,1, 4 शुगर है, 4 बॉन्ड अलग अलग है। सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल द डाइसैकेराइड्स। आपको इसको जूम करके धीरे धीरे पढ़ना भी है। और इसके लिए जो बुक है JL जैन, उसका जो सॉफ्ट PDF मटेरियल है वो भी मैं आपको क्लास में रख लूँगा। सो यू चेक योर वे।
तो इसको पॉज करके आप पढ़ ले और गेट द समरी ऑफ ऑल दिस वन. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. आपको एक वीडियो बार बार देखना है, तब जाके कुछ पता चलेगा. थैंक यू वेरी मच.